Hello students of class 10th. My dear students, as you all know that chapter number 2 polynomials is going on, and in my last lecture we have done important terms which is related to these chapters. Today exercise 2.1 I am going to start, which is based on the number of zeros. In this exercise there is only one question, exercise 2.1. What is this? The question number 1 is that the graph y equal to px are given in the figure 2.10 below for some polynomials px. Find the number of zeros of px in each case. In first graph, in part first, the graph is in this shape. This is the y-axis, this is the x-axis, this is origin. We are observing that this straight line is not touching the x-axis. So here there are no zeros. Here there are no zeros of px because it is not touching the x-axis. ये ग्राफ में x-axis को टच नहीं कर रही है, इसलिए there is no zeros. कोई भी जीरो नहीं होगा इस पॉलिनोमियल का. For second part, the second graph is like in this form. Here we are observing that this curved line intersect the x-axis at one point, so the number of zeros is 1. The number of zeros is 1 as graph intersect the x-axis at one point. नंबर ऑफ जीरोस इस ग्राफ के लिए केवल एक ही होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस लाइन को केवल एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है. सिमिलरली फॉर थर्ड पार्ट, द शेप ऑफ थर्ड ग्राफ इज इन दिस फॉर्म. The shape of third graph is like in this form, and we are observing that this graph curve lines intersect the x-axis at three different points, 1, 2 and 3, so that there are three number of zeros. कितने zeros होंगे? The number of zeros third part के लिए the number of zeros is 3. The number of zeros is 3 because the graph intersect the x-axis at three different points. 3 पॉइंट्स. कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है? 3 पॉइंट्स, 1, 2, 3. इसलिए नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 3 होंगे. फॉर द नेक्स्ट पार्ट, फॉर फोर्थ पार्ट, सिमिलरली द ग्राफ इज लाइक इन दिस फॉर्म. Here again this graph intersect the x-axis line at 2 points, so that the number of zeros is 2. फोर्थ पार्ट के लिए द नंबर ऑफ जीरोस इज 2 बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स. कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है? 2 पर कर रहा है. सिमिलरली फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट वी कैन डू इजिली. इन फिफ्थ पार्ट द कर्व्स intersect the x-axis at 1, 2, 3, 4 points, so the number of zeros is 4. And in similarly at last part, the graph touches the x-axis at 3 different points, so the number of zeros is 3. Now we have done this exercise 2.1. Now before starting the coming exercise 2.2, few formulas we will study here. The first concept is that relationship between zeros and coefficient of a polynomial. किसी पॉलिनोमियल के लिए रिलेशनशिप कैलकुलेट करना
if alpha and beta, these are the symbol, this is the alpha, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं, ऐसी these are the scientific symbols alpha and beta. If alpha and beta are zeros of a क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के वी नो वेरी वेल एटमोस्ट 2 जीरोस होते हैं. अब एवरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज एटमोस्ट 2 जीरोस. किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोस हो सकते हैं. हमने लेट कर लिया कि वो 2 जीरोस जो हैं वो अल्फा और बीटा है. देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, तब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, k ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा. Here k is a real value. K is a real value. If we are going to calculating the quadratic polynomial, अगर हमको एक quadratic polynomial calculate करना है and zeros are given और zeros दे रखे हैं, if alpha and beta are zeros of a quadratic polynomial, then quadratic polynomial is x square minus bracket में alpha plus beta x plus alpha beta. Substitute the values of alpha and beta in here and you will get the क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तब आपको क्या मिल जाएगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा. सिमिलरली रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट for a polynomial. रिलेशनशिप क्या होगी जीरोस और कोफिशिएंट में किसी पॉलिनोमियल के लिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए अगर अल्फा और बीटा क्या हैं, जीरोस हैं, तब सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल्स टू माइनस के बी अपॉन ए. A quadratic equation is given, suppose ax square plus bx plus kc. This is the quadratic polynomial and we have to calculating the relationship between zeros and coefficient. Then we have to calculate these two things. One thing, sum of zeros we have to calculate and it comes in this form minus k b upon a equal to minus what is b? B is the coefficient of x and a is the coefficient of x square. Means coefficient of x upon coefficient of x square. एक चीज तो हमको कैलकुलेट करना होगा, क्या, सम ऑफ जीरोस. अगर हमको रिलेशनशिप निकालना है जीरोस एंड कोफिशिएंट में एग्जाम में, तो हमको दो चीज कैलकुलेट करनी होगी, एक तो सम ऑफ जीरोस एंड अ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फॉर ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए दो चीज कैलकुलेट करनी होगी. एक तो करना होगा हमको रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड रिलेशनशिप अगर कैलकुलेट करना है, एक तो सम ऑफ जीरोस कैलकुलेट करना होगा, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. सेकंड इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा बीटा विच इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए. किसके इक्वल होता है वो, सी अपॉन ए के. मीन्स व्हाट इज सी हियर, सी इज द कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन coefficient of x square. Constant term upon coefficient of x square. ये रिलेशनशिप था between zeros and coefficient. Similarly for a cubic polynomial also. For a cubic polynomial, relationship between zeros and coefficient for a cubic polynomial. किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, इफ एज वी ऑल नो दैट अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट 3 जीरोस.
किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के एटमोस्ट 3 जीरोस होते हैं. तो इफ अल्फा बीटा एंड अनदर न्यू सिंबल इज गामा, दिस इज द न्यू सिंबल गामा. अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोस of a cubic polynomial, of a cubic polynomial, then we have to calculate these three things. First, alpha plus beta plus gamma, sum of zeros which is equals to minus b upon a. Cubic polynomial ax cube plus bx square plus के cx और plus के d. Suppose एक cubic polynomial दे रखा है आपको ax square ax cube plus bx square plus cx plus d, then sum of zeros equal to minus के b upon a, that is minus के coefficient of x square upon coefficient of x cube. Similarly, alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha अगर आपको कैलकुलेट करना है, that is c upon a, and last alpha beta gamma which is equals to minus के d upon a. अगर रिलेशनशिप क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमको कैलकुलेट करना है, that time you will calculate these three things. You will calculate alpha plus beta plus gamma which comes in this form minus b upon a. According to this cubic polynomial, you will compare your answer with the help of this. Similarly, sum of product of two zeros at a time taken together, alpha beta, that is alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha, ये आएगा c upon a, और लास्ट अल्फा बीटा गामा ये आएगा माइनस के डी अपॉन ए. इन दिस फॉर्म में ये आपका रिजल्ट आएगा. एंड लास्ट, सपोज जीरोस आर गिवन फॉर ए क्यूबिक पॉलिनोमियल. इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए अल्फा बीटा गामा क्या हैं, जीरोस हैं, तब देन क्यूबिक पॉलिनोमियल इज, क्या होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा. दोबारा देख लीजिए, अगर आपको जीरोस गिवन हैं एंड यू हैव टू फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल, देन द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज k, here k is a real number, k x cube माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ब्रैकेट क्लोज एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ब्रैकेट क्लोज एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा. Substitute all these three values, that is zeros, for a cubic polynomial. After solving this polynomial, you will answer will come in a cubic polynomial form. Now, the main concept we have done for the first question for the coming exercise 2.2. Now, the question number 1 of exercise 2.2 is that find the zeros of a polynomial, quadratic polynomial, and verify the relationship between zeros at coefficient. There are two questions in this question number 1, exercise 2.2. The question number 1, first part, given polynomial is x square minus 2x plus minus 8. एक पॉलिनोमियल दे रखा है आपको x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. फर्स्टली वी हैव टू कैलकुलेट द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड आफ्टर दैट द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, ये हमको वेरीफाई करना है. तो देखिए, फर्स्टली आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द जीरोस फॉर दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. नाउ this quadratic polynomial, we have the solution of this quadratic polynomial we have done in the previous classes. So we need two numbers here, we need two numbers such that their product is 8 and their subtraction is 2. ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट आए 8 और उनका जो सब्ट्रैक्शन है, जो डिफरेंस है वो 2 आ जाए. 8 के फैक्टर माइनस करके 2 आ जाए, 4 2 जा 8. एक्स स्क्वायर इन प्लेस ऑफ 2 वी कैन राइट 4 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज x माइनस 8. Open the bracket, x square minus 4x minus minus
plus 2x minus 8. In first two brackets, first two terms we can take x common, then x minus 4 is left. In next two terms we can take 2 common, then x minus 4 is left. Now in both the terms, these are two terms, we can take x minus 4 common, then what is left? X plus 2. These are the factors of this quadratic polynomial. इस quadratic polynomial के ये क्या हैं? Factors हैं, बट हमको कैलकुलेट करना है इसके जीरोस. सो क्या करेंगे? देखिए, टेक px इक्वल टू 0, दैट इज x माइनस 4 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0. इसको 0 के इक्वल लीजिए. इफ x माइनस 4 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज माइनस 4 राइट साइड जाके क्या हो जाएगा? प्लस 4. सेकेंड को 0 के इक्वल लीजिए. इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस 2. तो जीरोस क्या क्या आ गए हैं आपके इस पॉलिनोमियल के लिए? 4 एंड माइनस 2. 4 and minus 2 are the zeros of this polynomial. So 4 and minus 2 are zeros of px. This is the first answer of the question number 1. इस question number 1 के लिए first answer है कि जो x polynomial दे रखा है x square minus 2x minus 8, इसके this is the quadratic polynomial. So the zeros क्या आ गए हैं इस quadratic polynomial के? 4 and minus 2. The second part is that we have to verify that the relationship between zeros and coefficient. दो zeros आए हैं तो verification करने जा रहे हैं यहाँ पर. Verification. Let अल्फा इक्वल टू 4 एंड बीटा इक्वल टू माइनस 2. हमने दो जीरोस ले लिए. लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. लिख देंगे ये लाइन. वेरिफिकेशन. लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ px, देन अल्फा इक्वल टू 4 एंड बीटा इक्वल टू माइनस 2. वेरिफिकेशन के लिए हमको दो चीज करनी होती थी. एक तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए. तो 4 प्लस माइनस 2 क्या आ गया? 4 माइनस 2 दैट इज 2. और वी कैन राइट दिस 2 इज इक्वल्स टू माइनस के माइनस 2 अपॉन 1. माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा. 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, 2 आ जाएगा. तो दिस इज रिटन इन दिस फॉर्म माइनस के बी अपॉन ए. हेयर माइनस बी की जो वैल्यू है माइनस 2 है. देखिए माइनस 2 आ गई है. माइनस एज इट इज. बी की वैल्यू माइनस 2 और ए की वैल्यू क्या है? द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1. सो बी की वैल्यू क्या आ गई? ए आ गई. टैली हो रहा है. ये जो अल्फा प्लस बीटा है, सम ऑफ जीरोस है. अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन इट बिकम्स इन दिस फॉर्म माइनस के बी अपॉन ए. ऑलरेडी हैव टोल्ड दैट इन वेरिफिकेशन सम ऑफ जीरोस इक्वल आना चाहिए माइनस बी अपॉन ए के. एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे हम अल्फा बीटा. अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू माइनस 2. 4 माइनस 2 माइनस 8 को लिख सकते हैं माइनस 8 अपॉन 1 दैट इज सी अपॉन ए. देख लीजिए अब यहाँ पर सी की वैल्यू माइनस 8 है और ए की वैल्यू 1 है. तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ गई है? सी अपॉन ए. अगेन आई एम गोइंग टू डिस्कसिंग दिस फर्स्ट पार्ट. अगेन फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. जीरोस कैलकुलेट करने थे तो इसके जीरोस हमने कैलकुलेट कर लिए. पहले फैक्टर निकाल लिए, फैक्टर को 0 के इक्वल रखा तो ये इसके जीरोस आ गए हैं 4 और माइनस 2. अब वेरिफिकेशन और करना है. ये तो 4 और माइनस 2 जीरोस आ गए हैं. वेरिफिकेशन करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट. तो एक को अल्फा लेट कर लिया, एक को बीटा. दो चीज हमेशा कैलकुलेट, जब भी लिखा हुआ आएगा कि वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, देन यू विल कैलकुलेट दीज टू थिंग्स for a quadratic polynomial. One is alpha plus beta, that is sum of zeros. Another is alpha beta, that is product of zeros. Students, in this video complete up to this question. Thank you. Have a good day.